Welcome back, students. Today is the session number 2 from the chapter of electrostatic potential, and the topic is the potential energy due to a system of charges. तो इसके इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले we will be revising what we have discussed in the session number 1. So in the session number 1, we have studied that if we bring a test charge, now test charge is considered to be a very small charge in comparison to the source charge. Now the source charge here is a positive charge that is denoted by Q and denoted by capital Q, and the test charge is the positive charge which is denoted by small q. So test charge is a very small charge in comparison to the source charge, and we are now bringing one test charge from infinity to a point in the electric field of this source charge. So ये मैंने इस डायग्राम में जो है आपको शो किया है कि this is the test charge which has been brought from infinity to a point S in the electric field of this source charge Q. और ये जो source charge Q है it is placed at the point P, and ये मैंने एक कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया है in order to define the position of this source charge and the test charge. The source charge जो है it is placed at the point P, and this source charge is placed at the point P, and the test charge is placed at the point S. So और ये जो RP है this is the position vector of this point P, ठीक है, means this is the point at which this source charge Q is placed, and this RS is the position vector of this point S where the test charge, that is the Q, is placed, and both these charges are positive in nature. So when we are bringing this test charge from infinity in the electric field of this source charge, then we have to apply some external force in order to overcome the इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट एस, we have to apply an external force which should be sufficient enough to overcome this electrostatic repulsive force. तो sufficient enough means का मतलब ये हुआ कि this F external जो है it should be slightly more than FE. If E is the here I have designated FE as the electrostatic repulsive force. So अब अगर let us say for example अगर मैं कहता हूँ कि FE is equal to 10 न्यूटन है, ठीक है, तो F एक्सटर्नल हमें कितना लगाना पड़ेगा, वो होगा हमारा 10 से ज़्यादा. इट शुड बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन. बट 10 न्यूटन से कितना ज़्यादा, इट कैन बी 10 पॉइंट, you can put hundreds of zeros, hundreds of or even thousands of zeros, and at the end of let's say 1,000 zeros you are just putting 1, so it will become 10 point that 1,000 zeros and 1, that so this quantity will be more than Fe. So because of this net force, that is F external minus Fe will be some value, you will get a very small values. So because of that net force on this charge Q, that is the test charge Q, this charge will start moving with a very small velocity, and it will come to this point S. ठीक है, the velocity will be so small that we can say that the acceleration of that this test charge Q can be considered as almost zero. It is not going to be zero, but it will be almost zero. So now after when this charge Qs has been brought to this position S in the electric field of this source charge Q, then the work done. Now when we are applying an external force on this charge Q in order to bring it to this point S, then some work will be done. ठीक है, now that work is, I have written it here, that this work done will be equal to this is the integration from this infinity
up to this point S, F external dot dr, that is equal to माइनस मैंने Fe लिखा हुआ है, again integration from infinity to this point S, Fe dr. Now because you know F external is equal to minus Fe, because these two forces are acting in the opposite direction. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने जो है माइनस की यहाँ पे लिखा हुआ है. So this can be written as minus integration from infinity to this point S, Fe dot dr. Again, now this can also be, so this is work done, this is also equal to the potential. Now this work done will be stored in the form of potential energy in the test charge at this point S, ठीक है, at this point S, which is in the electric field of the source charge. So work done will be equal to the potential energy which is stored in the test charge at that particular point, and then this can also be written as QV, because as I have as I have discussed in the previous session, that is in the session number 1, then in that session I have discussed few these formulas, जिसमें से एक formula ये भी था कि आपका this V is equal to W upon Q, where V क्या है, V is the electric potential at this point S, which is equal to the work done divided by the magnitude of that charge. ठीक है, तो this is the electric potential at this point S. तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, that is equal to QV. ठीक है, and then V is also equal to, और E is equal to V upon R. ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, so we can also substitute the value of V here and write it that Q is equal to so this is equal to QER. ठीक है, so ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, that is the work done in bringing a test charge from infinity to a particular point in the electric field of the source charge, which is equal to the potential energy which is stored in the test charge at that particular point, and which is equal to Q into V, which can also be written as Q into E into R. ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि when we have brought one test charge from infinity to a particular point in the electric field of one source charge. अब ये मैं ये कहता हूँ कि let us say, अब मैं यहाँ एक डायग्राम और बना देता हूँ. मान लीजिए वो सेम दिस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करते हुए, तो मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है, ये Q है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज Q है. मैं इस पॉइंट को डिनोट कर देता हूँ लेट अस से बाय P, या लेट अस से आई एम जस्ट डिनोटिंग दिस पॉइंट एज X. ठीक है, और हम ऑलरेडी ये जो चार्ज आ गया है यहाँ पर, लेट अस से दिस इज एट अ पॉइंट Y. ठीक है, और ये पॉइंट है और ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब हम ये कहते हैं इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी लेट अस से इट इज R. ठीक है, ये R हो गया. अब इस चार्ज को मैं दूसरे पॉइंट पे लेके आता हूँ, लेट अस से Z. ये आपका एक पॉइंट हो गया Z, ये यहाँ पे आ गया. बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स आई हैव brought this charge from the point Y to the point Z in the electric field of this source charge. ठीक है, ये लेके आ गया. लेट अस से इसकी जो अब ये इनकी जो दूरी है, लेट अस से मैं कहता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर है Z. अब लेट अस से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, आई एम जस्ट टेकिंग इट एट रैंडम, ये आपका D हो गया. ठीक है, अच्छा, आप इस सोर्स चार्ज की या किसी भी चार्ज की जो पोजीशन है, यू कैन डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर आल्सो. अगर आप चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q है, यू कैन डिनोट इट बाय, लेट्स से आई एम जस्ट डिनोटिंग इट बाय R1. ठीक है, आप इसकी जो पोजीशन वेक्टर है इसका यू कैन डिनोट इट बाय R2 चाहे तो. ठीक है, आप R2 वेक्टर से कर सकते हैं. और इसी प्रकार से आप ये वाला जो वेक्टर है, सॉरी ये वाली जो आपका जो पॉइंट है दैट इज Y, इसको आप पोजीशन वेक्टर R3 से डिनोट कर सकते हैं. सो
इसका ये अभी लेट अस ये O है, ये पॉइंट मैंने ले लिया है, ये आपका लेट अस से इस पॉइंट को हमने क्या लिया हुआ है, ये हमने Z है, और ये पॉइंट है मेरा ये पॉइंट हमने लिया हुआ था आई थिंक X, तो यहाँ पे जो है वो दिस इज द पॉइंट X, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट Z, ये पॉइंट Z है, ठीक है, ऐसे करके. सो you can find the distance between the point x and z by using the triangle law of vectors. triangle law of vector में क्या होता है, हम इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल क्या बन रहा है, o x z, o x z. so we can say that vector r1, see the position vector is normally represented by r1 means by r. so यहाँ पर r1 कर दिया. अब ये जो आपका है this x z, इसको मैं ले लेता हूँ, let us say this is r एक्स जेड कर दिया मैंने, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर r2. सो r z विल बी इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस r1. अब अगर हम ये मानते हैं कि ये जो चार्ज है दैट इज दिस टेस्ट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज q, दे आर लाइंग इन द xy प्लेन, तो इनके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे. इसका भी xy कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि विच वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑल्सो, दैट इज r2. लेट अस से इसका कोई कुछ भी है, लेट अस से r2 वेक्टर है, इसका मान लीजिए x कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x2 i कैप हो जाएगा प्लस y2 j कैप हो जाएगा. मान लीजिए r1 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है. ये तो आपका ये जो है आपका दिस x, ये वाला दिस, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स जेड, इसको आप यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प, वी हैव रिप्रेजेंटेड इट विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर आर एक्स जेड. तो इसको आप, इसकी जो मैग्नीट्यूड है हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस कैन बी, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो इस प्रकार से इसकी आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बिटवीन द पॉइंट x एंड z, ठीक है. सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट x एंड y आल्सो by using the triangle law, by using the triangle law of vector addition, and then I have found the magnitude of this vector using this formula, ठीक है. So now ये तो मैंने आपको जस्ट एक छोटी सी जानकारी दिया था कि how can we use this triangle law of vectors in order to find the this displacement or the distance between the 2 points, ठीक है. ये मैंने आपको बताया. So now अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल और थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा. सो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर. मान लीजिए ये है मेरा XY फ्रेम है, ये दिस इज द कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ओरिजिन हो गया. ये एक मेरा पॉइंट है Q, ये पॉइंट है मेरा लेट अस से A ले लेते हैं, और ये आपका एक चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. अभी एक ऑलरेडी एक ये जो टेस्ट चार्ज है दैट इज प्लस Q, इट इज एट दिस पॉइंट B, ठीक है, एंड इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस source charge Q. This charge is very small in comparison to this charge that is the capital Q. इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है इसके कंपैरिजन में. अब हम क्या करते हैं, इस लेट से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है. आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड. अब ये यहाँ से लेकर मैं इस चार्ज को यहाँ पर लेके आ गया बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इनकी यहाँ लाने के बाद में मैं कहता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ और इसके बीच में लेट अस से ये R है. अब ये हो गई आपकी D, ठीक है, ये हो गई. सो ये कैसे आएगा, बिकॉज बोथ दी चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, सो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट B टू द पॉइंट C, आई हैव टू अप्लाई द दिस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. So that this charge comes to this point and this external force should be sufficient enough to overcome this electrostatic repulsive force. इस केस में वो क्या होगा कि जो चार्ज है it will be coming with a very very small velocity और acceleration again it will be very less, or you can say that it will be almost zero. So in this case the work done क्या हो जाएगा,
अगर मैं इसको इस तो वर्क डन in this case I will be using the same formula, that is you are bringing this charge from B to C, so I will be using that from B to this point C and force external, ठीक है, dot dr, ठीक है. Let us say this is the ये Q का जो है, this is the position vector of this point. I am representing it by RA. Let us say this is the position vector of the point C, ठीक है. I am representing it by RC, ठीक है, ये हो गया. So and this is the, let us say similarly आपका यहाँ से आप इस पॉइंट को भी आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज R. ये है आपका B, ठीक है, ऐसे कर सकते हो. तो this is the, and the position vector is always directed away from this source, ठीक है, it is directed towards the point. तो ये हो जाएगा where, so ये आपका work done होगा, that is if I am bringing this charge Q from B to C, then the work done will be equal to the integration from B to C F external dot dr हो जाएगा, which will be equal to, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, equal to what, integration from B to C, not from B to C होगा, not R, it's from B to C, and this will be, now F external क्या है, this is equal to ये minus Fe हो जाएगा, that is the electrostatic force of repulsion dot dr. And now you can write it down as, this can also be written as, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. So this will be work done हो गया. This can be written as the see, यहाँ पर क्या है, it is having some potential. यहाँ पे चार्ज आ गया, इसका लेट से मैं कहता हूँ पोटेंशियल है इसका VB. यहाँ पर इस ये जो चार्ज है, ये जो ये टेस्ट चार्ज अभी आया, इसका पोटेंशियल VC है. यहाँ पर इस पोटेंशियल की वजह से इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम लिखेंगे चलो UB. यहाँ पर इसका UB है और यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है UC है, ठीक है. सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F फोर्स एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम B to C, एंड ये हो जाएगा माइनस Fe फ्रॉम B to C डॉट dr. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज U. नाउ इन दिस के, ये तो था जब हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज. बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी एक चार्ज है यहाँ पर, अब हमने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट किया है. सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये इस पॉइंट पे UC है, तो इट विल बी इक्वल टू UC माइनस UB. दिस विल बी इक्वल टू, नाउ Q into V. This is this work done is also equal to Q into V. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q delta V. Delta V means the change in the potential. The change in the potential कितना हो जाएगा, VC minus VB. ठीक है. So this is an important ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, that work done is equal to this integration of this electrostatic force, ठीक है, from B to C, that is electrostatic Fe dot dr from B to C is equal to the change in the potential energy while bringing that test charge from B to C, that is equal to UC minus UB हो जाएगा, and that is equal to Q into delta V. Now Q हमारा जो चार्ज है, that is Q है, ये हमारा जो ये चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड है, and into the difference of the potential at the two different points. So difference of potential क्या हो जाएगा, VC minus VB. So this is how we calculate the work done while bringing a charge from one point to another point in the electric field of another charge. ठीक है. So ये हमारा हो गया. This is all about how we calculate the work done in shifting the charge from one point to another by the
by the application of the external force. ठीक है, तो ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ये जो आपका ऊपर मैंने लिखा हुआ है दिस वन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. सॉरी, ये वाला, दिस इज इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और भी एक चीज लिख देता हूँ कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू V अपॉन R, where R is the distance of that point from the position, or you can say from the location of the charge, जहाँ पे चार्ज पोजिशन है वहाँ से लेके और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहाँ पर, ये वो डिस्टेंस है. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज. ठीक है, एंड V इज द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो V E is equal to V by R हो जाएगा. एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है which will be used in a number of numericals which we'll be doing in the coming sessions. एक तो ये हो गया, so ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया. And so I think this is all with regards to what we have studied in the last session. Now I will be just going through the topic of this potential energy due to a system of charges, means how we calculate the potential energy due to a system of charges. And so I will be just drawing a small figure on this board. System of charges. यहाँ पे मान लीजिए मैं एक this is a free space right now. There is no charge in this space, and I will be taking I will be trying to find the potential energy of a system of charges by taking the reference of XY plane. So यहाँ पर क्या है, एक मैं छोटा फिर से यहाँ पे कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करूँगा अगेन. ठीक है, यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया. ठीक है, और अब मैं कोई भी ये दिस इज अ फ्री स्पेस एंड आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द XY प्लेन फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे लेटर से इसमें मैं एक चार्ज आई हैव ब्रॉट वन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड आई प्लेस्ड इट एट सम पॉइंट, लेटर से एट पॉइंट A, और ये चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ मैं Q1. ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इट विल बी R1. ठीक है, अब जब हम इस देखो ये जो हम चार्ज को इस पॉइंट में लेके आते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस स्पेस में कुछ भी कोई भी चार्ज नहीं है. सो एज पर द means as per what we have studied in till now, that the work done in bringing this charge from infinity to this point will be equal to 0. That is, work done in bringing the charge Q1 at A will be equal to 0, because in bringing this charge to this point we have not, means there is no this means we have brought this charge to this point in the absence of any this external force. यहाँ पे कोई force नहीं है. ठीक है ना, so because this charge has been brought in a space where there is no external force, so therefore the इस पॉइंट पर जो है वर्क डन 0 हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम एक दूसरा लेके आते हैं चार्ज. लेटर से हम एक चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं, ये लेटर से यहाँ पे हम एक चार्ज लेके आ जाते, इस पॉइंट पे एक चार्ज लेके आ जाते हैं Q2 पॉइंट B. ठीक है, आई हैव टेकन, ये भी चार्ज हम लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी. ये भी पॉजिटिव चार्ज है. आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द चार्जेस पॉजिटिव. तो इसका जो है आपका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया R, ये है Q1 है, तो ये R1 है, ये R2 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है, जब हम इसको लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो नाउ यहाँ पर देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. ये जो चार्ज है ये देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड सो इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी वी विल बी डूइंग सम वर्क. ठीक है, द वर्क विल बी डन अगेंस्ट दी this electrostatic repulsive force. So
जब हम इसको, अच्छा अब इनके बीच में आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, तो यहाँ तक लाने के लिए वी विल अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स विच शुड बी सफिशिएंट एनफ टू ओवरकम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई। उसके वजह उसके तो व्हाट विल हैपन, सम वर्क विल बी डन, ठीक है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स दिस चार्ज विल कम हियर, ठीक है, और यहाँ पे जब चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 बिकॉज विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की आपको कैसे निकालना है, यू कैन यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आल्सो। ट्रायंगल लॉ क्या है, इसकी जो Q1 है इट इज प्लेस्ड एट ए, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि R1 जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस दिस, इसको हम लिख लेते हैं R1, इसको लिख लेते हैं RAB, सॉरी R1 प्लस RAB इज इक्वल टू R2। सो RAB इज विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय R। तो ये हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड, अगर ये चार्ज XY प्लेन में है तो ये R2 के अपना एक लेट अस से R2 क्या है आपका, इसकी कुछ ना कुछ ये हम लिख सकते हैं कि R2 कैन बी इक्वल टू लेट अस से X2I प्लस Y2J, और इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, ये हो जाएगा आपका R1 दैट विल गो टू X1I प्लस Y1J। So this position vector, or you can say vector RAB will be equal to R2 minus R1. So ये आपका हो जाएगा that is X2 minus X1 I plus Y2 minus Y1, और इसकी जो मैग्नीट्यूड निकालनी है फिर RAB की, वो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा X2 minus X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 minus Y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है, ये जो वेक्टर ए बी है इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब इसकी जो आपकी जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे RAB, ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू RAB, तो मैंने यहाँ पर RAB लिख दिया। सो दिस वर्क इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q2 टू दिस पॉइंट B will be equal to Q1 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Q2 by RAB। इसको वर्क डन यहाँ पे जीरो था, जीरो इसलिए था चार्ज Q1 को लाने में एट द पॉइंट ए वर्क डन जीरो था बिकॉज यहाँ पे कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ। सो जिसकी वजह से मीन्स जिसकी वजह से मेरा जो वर्क डन है वो आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिस WQ इस चार्ज को लाने के लिए यहाँ पे जो वर्क डन हो गया है बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, जिसको काउंटर करने के लिए हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई है सो दैट इट रीचेज द पॉइंट बी। तो एंड इन डूइंग सो सम वर्क इज डन, और वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन भी हो जाएगा। और यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ this means of this system of charge, that is Q1 and Q2, ठीक है। the potential energy because of this system of charges that is Q1 and Q2 will be equal to ये, ठीक है, because this work done will be stored in the form of potential energy in this system of charge, ठीक है। basically you can also say that this potential energy will be stored in this this work done will be stored in the charge Q2, ठीक है, in the form of potential energy। और ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज दैट इज Q1 एंड Q2 का, इसका भी जो आपका दैट पोटेंशियल एनर्जी है वो यही रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है जब हम लेके आए थे, ठीक है। सो अब आते हैं वर्क डन Q3। इफ आई एम ब्रिंगिंग दिस चार्ज, एक और चार्ज है, लेट अस से मैं कहता हूं यहां पर
अगर मैं यहाँ पर एक जो चार्ज है यहाँ पे लेटर से पॉइंट सी है, यहाँ पर मैं Q3 लेके आ जाता हूँ एक चार्ज, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं R3 ले देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसको यहाँ लाने में दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज Q2 एंड Q1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस द वर्क डन विल बी इक्वल टू दी this work done will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 डिवाइडेड बाई, अब मैं अगर इसका जो इसको मैं डिनोट करता हूँ, लेट्स से ये है आपका, ये आपका QD हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका लेटर से, ये मैं इसको ले लेता हूँ वेक्टर को RBC, ठीक है। तो ये हो जाएगा RBC। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाउ टू कैलकुलेट दी दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इसी प्रकार प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वजह से भी जो है there will be an repulsive force on, there will be an electrostatic repulsive force between this charge Q1 and Q3। तो ठीक है, तो so the work done in bringing this charge Q to this point C against the electrostatic repulsive force due to this charge Q1 will be equal to Q1 Q3 divided by R। ये ले लेंगे अगर हम, ये अगर मैंने इसको ले लिया R AC कर देते हैं इसको AC, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q3 एट दिस पॉइंट C, ठीक है। एंड ये वर्क डन जो है क्या है, इट इज द सम ऑफ द वर्क डन दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज Q2 एट द पॉइंट B। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जब Q3 लाएंगे तो वी हैव टू apply the external force in order to overcome the electrostatic repulsive force due to this charge Q2। तो उसके वजह से we will be bringing this charge Q2 here, ठीक है। and for because of that reason some work will be done and that work will be stored in the form of potential energy। तो ये potential energy किसमें stored हो जाएगा, this will be the potential energy of this system of charge that is Q2 Q3, ठीक है। and so work done will be equal to what, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाई RBC, ठीक है। एंड इसका जो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हमें वी विल बी अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड इन डूइंग सो दिस वर्क विल बी डन एंड दैट वर्क विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड बाई RAC। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी टोटल जो है वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये इस चार्ज को लाने में वर्क डन क्या हुआ, 0 है। 0 क्यों है, बिकॉज वी देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स जिसके अगेंस्ट में हम देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स इन दिस रीजन ऑफ स्पेस एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो वर्क डन है वो आपको 0 हो गया था। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई ये प्लस ये प्लस ये। तो इसमें अगर हम लोग लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में कर देंगे Q1 Q2 सॉरी, ठीक है, डिवाइडेड बाई RAB। ये हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई RBC प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई RAC, ठीक है। सो दिस इज द टोटल वर्क डन in order to place these three charges in a region of space in this xy plane. This is the xy plane of the Cartesian frame of reference, ठीक है, जिसका origin आपका O है। So this is now this total work done will be the potential energy of this system of charges,
ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges. Because whatever work is done in order to bring these three charges at these points, that is A, B and C, that will be stored in this system of charges in the form of potential energy. So the potential energy of the system of charges in this case is equal to आपका ये हो जाएगा जीरो है, जीरो प्लस, so finally it will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ये आपका हो गया, ठीक है, Q1 Q2 by RAB plus Q1 Q2 Q3 divided by RBC plus Q1 Q3 divided by RAC, and this is equal to the potential energy of the system of charges, that is हम आप लिख सकते हैं Q1 Q2 and Q3. So this is how we calculate the potential energy of a system of charges. यहाँ पे मैंने थ्री चार्जेस का जो है कन्फिगरेशन लिया है. They can be many more, आप 4-5 मतलब you have to follow this entire step. इसी प्रकार से करना है. एक और अगर चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए Q4 है, then it will be experiencing the electrostatic repulsive force because of this charge Q3 and Q2 and Q1. तो उसी हिसाब से जो है then you will have to individually find the work done in bringing that charge to that point because of this charge Q3, Q2 and Q1. फिर आपको वो जो है आपको वर्क डन है वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा है वो, एंड दैट वो आप ऐड कर देंगे, एंड देन द टोटल वर्क डन जो है वो आपका जो आ जाएगा, और उसके बाद में दैट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, दैट इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. And thank you very much for joining. In the next session we will be doing 3-4 numerical problems on this same topic, and till then have a nice day and bye.